আচ্ছা, হ্যালো, চাউণ্ডটো নেযায় নে এইটো চাউণ্ডটো ইয়াত এইটো ইজ ইট অডিবল? হেল্ল', হেল্ল', Yes, sir. ইজ ইট অডিবল? Yes, Yes, Okay. sir. Okay, okay. sir. Okay. Start করি না? Okay. Today we will discuss the difference of audit and finance, that is called accounting. So yesterday I have revised your topic that what is the auditing. So today I will be discussing some of the basic points of accounting and audit. What is the main difference between the two things? So as we know that accounting deals with the financial figures, and auditing deals with that you have to check these financial figures. Means common features is that they both deal with the numericals. Okay. So this, from exam point of view, this question is very much important. It can be asked around 6 marks question. So let me uh, make and base how accounting and auditing, these two are different. See, audit is done on independent approach. Accounting is also done in basically in, I can say, on independent approach. Second difference can be what? Auditing are also used by information technology softwares like SAP. Some of the examples are there, like SAP audit, it is there. Finacle, these are the examples. Accounting also we can do from Tally. Tally is also the software which can be, means both of them use ERP programs. These are called ERP programs. Okay. So I will give you some of the points which you should write in your copy. How audit and accounting are different from each other. So if I say the first difference, you write the first point. In auditing, you write auditing is done on the basis of some standards. Auditing is done on the basis of some standards. This pen, small tip. Okay, auditing is done on the basis of some standards. And accounting is done on the basis of some accounting standards. Accounting standards of ICAI, ICMI, etc. ओके, समझा? ठीक है. जो अकाउंटिंग होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे किया जाता है, और जो ऑडिटिंग होता है ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेस पे होता है. हर स्टैंडर्ड्स का अपना अपना अलग क्राइटेरिया है. ठीक है. अच्छा, सेकेंड डिफरेंस कैन बी in terms of accounting, there is no liability. And in auditing, there is a liability. In auditing, there can be a liability. And now you will be asking what liability? Liability is what? You have to check the entire books. You have to check the entire transactions in some rules. This is the liability of auditor. Okay. So accounting में आप लिख सकते हो कोई liability नहीं है, no liability. And in auditing, there is the liability of auditor. ठीक है. There is a liability to the auditor to respond to third party. Third point can be
In accounting, we record entries and transactions. In accounting, we record entries and transactions. Okay? And in audit, there is the checking. In audit, there is the checking. Accounting में आप लिखो, in accounting there is there is entries of transactions. ठीक है? और आप audit में लिखो, there is checking of these transactions. There is checking of these transactions. फोर्थ डिफरेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप अकाउंटिंग में लिखो, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट and shareholders to maintain the financial records, अकाउंट्स में तो हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करते हैं ना, उसके अलावा तो कुछ मेंटेन नहीं करते, जो अपनी बुक्स है वही हम लोग को मेंटेन करना है. ठीक है? और आप ऑडिटिंग में लिखो, एज ऑडिटर इज एन, आप ऑडिटिंग में लिखो, एज ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन there is a review there is a review of these transactions and the auditor forms opinion. कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑडिटिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है, एविडेंस के बेस पे. तो ऑडिटर के सामने एविडेंस क्या है, जिस कंपनी का अकाउंटिंग वो कर रहा है, जो चेकिंग कर रहा है, उसके सामने वो उसका है क्या है, एविडेंस है, और उसके सामने उसी एविडेंस पे वो अपनी डिसीजन फॉर्म करेगा. ठीक है? एंड ही बेस दिस ओपिनियंस. अच्छा, आप कौन सा नंबर डिफरेंस है ये? 4. अब 5 नंबर डिफरेंस लिखो. क्या नहीं लिखा क्या आपने? कौन सा रिपीट करना है? हाँ, अकाउंटिंग का. इट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मेंटेन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ठीक है? आप एक और डिफरेंस लिख सकते हो. Accounting is the collection, summarization and classification of data. ठीक है? And classification of data. Whereas in auditing, there is critical examination. There is critical examination. Highlight the word critical. Critical examination and checking of these transactions. Okay? And checking of these transactions.
नाउ द क्वेश्चन इज, आपने अकाउंट्स और ऑडिटिंग का डिफरेंस तो समझ लिया क्या है। अब हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या है कि हम ऑडिट करते क्यों हैं। ठीक है, हम ऑडिट करते क्यों हैं। हम ऑडिट करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑडिटर को करना होता है। एक ऐसे होता है, ऐसे 200 एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो बताता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझाऊं, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑडिटर एक प्रोफेशनल बंदा है, ऑडिटर एक प्रोफेशनल बंदा है। तो जब भी ऑडिटिंग स्टार्ट होता है, हमें ऐसे 200 का जो दायर जो बताया गया है, 200 में जो बात लिखी गई है, जो 200 का ऑब्जेक्टिव है वो फॉलो करना है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑडिटर जो ऑडिट एविडेंस अपने पास रखेगा वो रिलायबल होगा और उसी ऑडिट एविडेंस के बेस्ड पे वो अपनी ओपिनियन देगा। ऑडिटर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि ऑडिटर के पास में जो एविडेंस है, जो एविडेंस उसके पास है, वो उसी एविडेंस के बेस पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करेगा। ऑब्जेक्टिव्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स है क्या, डिसीजन देना, जजमेंट देना। ठीक है, डिसीजन देना और जजमेंट देना। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि उसकी क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी, ऑडिटर की। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, ऑडिटर की। ठीक है, ऑडिटर की, उसको ओपिनियन ही देना है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपको बोला है कि आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाओ। डिपार्टमेंटल स्टोर पता है ना क्या होता है, कि हर सामान अवेलेबल है डिपार्टमेंटल स्टोर पे, ग्रोसरी का भी ले लो या कुछ भी ले लो। अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑडिट करना है, अगर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑडिट करना है तो कैसे करोगे। जब ऑडिट किया जाता है ना, जब ऑडिट करते हो ना, सबसे पहले क्या होता है, जो क्लाइंट है। अब क्लाइंट कौन है, क्लाइंट है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, वो इंसान जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। अब क्लाइंट कोई भी हो सकता है, इंसान भी है, कंपनीज भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कोई मैं बोल सकता हूँ आपकी प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती है, कोई भी हो, उनको फर्म बोला जाता है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब जाओगे ऑडिट करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, हम क्या करते हैं, हमारे बीच और ऑडिटर के जो क्लाइंट है हमारा, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं, बताओ। ऑडिट कर रहे हैं हम उसका, नो डाउट, तो हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो हमें सबसे पहले क्या देगा, एविडेंसेस देगा, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स देगा, हमें वो पूरी कंपनी का डाटा देगा। तो हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। ऑडिट करने से पहले क्या होता है पता है, एक इंगेजमेंट लेटर बनता है क्लाइंट और ऑडिटर के बीच। उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये लिखना होता है, ऑडिटर ये लिखेगा कि मैं आपका ऑडिट कर रहा हूँ और मेरा जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेरे यही ऑब्जेक्टिव्स है कि मैं आपका ऑडिट करने वाला हूँ। मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है वो मैनेजमेंट अपनी ऑब्जेक्टिव्स उस पर लिखती है। एक लेटर होता है, इंगेजमेंट लेटर जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इंगेजमेंट लेटर। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंगेजमेंट लेटर तैयार करना पड़ता है, जो ऐसे 210 में आता है। ऐसे 200 में क्या बोला, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, ऑडिट करना। और 210 में क्या होगा, इंगेजमेंट लेटर बनाना होगा हमें। इंगेजमेंट लेटर क्या है, एक डॉक्यूमेंट होगा जो बताएगा कि आप, मैं ऑडिट कैसे करूंगा, मैं किस फॉर्म से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट्स क्या है, मेरा पर्पजेस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है, वो सब कुछ इसमें आएगा। इंगेजमेंट लेटर बनता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंगेजमेंट लेटर होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखवा रहा हूँ, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कॉमनली। ठीक है, जो कॉमनली पूछा जाता है, बेसिक अगर क्रक्स निकलता है ऑडिटर का, ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मेरे को ओपिनियन फॉर्म करनी है। अब ओपिनियन फॉर्म किस पे करेगा, एविडेंस पे करेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव लिखो, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप लिखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप लिखो, to obtain reasonable assurance. Please highlight this word, reasonable assurance. To obtain the reasonable assurance
to obtain a reasonable assurance where financial statements of financial reasonable assurance. Please highlight the word reasonable assurance. Where financial statements, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकती है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकती है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी बैलेंस शीट, उसकी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, ये क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। इक्विटी में क्या होगा, जो इक्विटीज के बारे में सारा डिटेल्स बताएगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ा था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। तो ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बिन लिखो, आर बिन प्रिपेयर्ड वेदर, क्या लिखा आपने, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are prepared on all material aspects, highlight the word material aspects, and they are free from material misstatement whether due to fraud and error, ठीक है, whether due to fraud and error। समझ लो आप, इसका मतलब क्या है, कुछ टर्म्स है इसमें। कंपनी ने जो बुक्स बनाया है, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, ऑडिटर उस पर क्या करेगा, ऑडिटर अपनी ओपिनियन देगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ऑडिटर ये देखेगा कि जो कंपनी ने बुक्स बनाया है क्या उसमें कोई गलती है, अगर गलती है तो मैं रिपोर्ट करता हूँ। तो ऑडिटर क्या चाहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलतियों से फ्री हो ना। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, गलती, कोई गलती हुआ है उसको मिस स्टेटमेंट बोला जाता है। मिस स्टेटमेंट का मतलब है गलती। और मटेरियल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है क्या आपने रूल्स के साथ बनाया है या नहीं, उसको बोला जाता है मटेरियल। मटेरियल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही। आप लिख सकते हो उसका मतलब, मटेरियल एस्पेक्ट्स का मतलब होता है बिल्कुल सही। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको होल हार्टेडली याद कर लो कि ऑडिटर का ओपिनियन क्या होगा, टू सी वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एरर्स, ठीक है, वो एरर्स फ्री होना चाहिए, एरर फ्री, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आपने सीखा होगा, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब पता है क्या होता है, देखो ऑडिट होगा नो डाउट, कुछ गलती रहेगा। अब इसका 100 ये नहीं है कि 100% ही सही होगा। आज तक कोई काम इंसान का 100% सही हुआ है क्या, नहीं। रीजनेबल एश्योरेंस पता है क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है भाई मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ आपको, वो ऑडिटर बोल सकता है क्लाइंट को, ठीक है मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, लेकिन ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं है। कुछ गलती होगा ही होगा कुछ, क्योंकि ऑडिट तो इंसान ही कर रहा है ना, उसको जो लगेगा वो अपना डिसीजन और अपना ओपिनियन देगा, ठीक है, वो अपना ओपिनियन और डिसीजन देगा। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एन हाई एश्योरेंस, इज नॉट एन हाई एश्योरेंस। कुछ ना कुछ उस पे 0.25%, 0.1% कुछ ना कुछ गलती जरूर होगा, ये आप भी मानते हो, ठीक है। तो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता। एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है ना, ये जो एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है ना, ये एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाँ भाई बिल्कुल सही है, एकदम मैं सच 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, ये गारंटी वाला एश्योरेंस है, हाँ सही है बिल्कुल, कोई गलती नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं रीजनेबल, कुछ हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता। समझ में आया, ओके। अच्छा, उसके बाद में आप लिखो, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद में आप अदर ऑब्जेक्टिव्स लिखो, क्या है ऑडिटर का अदर ऑब्जेक्टिव्स, अदर ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हो।
नंबर ए, to protect stakeholders, number B, to stop cascading of taxes. cascading का मतलब होता है टैक्स चोरी, cascading, CASCADING, cascading of taxes, ठीक है। उसके बाद और ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हो, टू एंश्योर प्रॉपर एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स, टू एंश्योर प्रॉपर एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स, और लास्ट में आप लिख सकते हो, टू रिपोर्टिंग द फ्रॉड, व्हेन इट ऑकर्स, ठीक है, टू रिपोर्टिंग द फ्रॉड व्हेन इट्स ऑकर। कल मैंने आपको फ्रॉड के बारे में कुछ समझाया था ना, याद है ना कल फ्रॉड क्या था? गलती, मिसकंसेप्शन, मैनिपुलेशंस, वो फ्रॉड होता है, ठीक है, वो कंपनी ऑडिट में आएगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑडिटर जो अपनी ओपिनियन देता है, ऑडिटर जो रिपोर्टिंग करता है, वो कहाँ रिपोर्ट करता है? कुछ तो होगा रिपोर्टिंग करने का, कुछ तो नाम होगा ना। एक हमेशा मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ऑडिटर जो रिपोर्टिंग करता है वो रिपोर्टिंग कारो 2020 पे करता है। कारो 20, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो ऑडिटर की जो रिपोर्टिंग्स होती है ना, कारो 2020 पे होता है। इससे पहले कारो था 2016, ठीक है, इससे पहले था 2016, इससे पहले था 2003। ये कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग्स होता है। जब हम लोग कोई ऑडिट करता है ना, तो हम लोगों को कुछ लगता है, जैसे कि आप लोग कुछ असाइनमेंट बनाते हो कोई भी प्रोजेक्ट का, आप लोगों को लगता है कि मेरे को एक्स्ट्रा कुछ बताना है, तो आप क्या लिखते हो? नोट्स लिखते हो ना, नीचे नोट्स लिखते हो ना। वैसे ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ऑडिटर का, कि कारो 2020 जो ऑडिटर को लगता है कुछ भी मैटर्स हो, जैसे कि कॉस्ट ऑडिट के बारे में, कोई फ्रॉड के बारे में, कोई अनडिस्प्यूटेड टैक्सेस जो होता है, जैसे आपका जीएसटी का कुछ टैक्सेस चल रहा है कोर्ट पे, सरकार को लगता है कि आपको इतना टैक्सेस देना है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरे को इतना टैक्सेस देना है, जिसको हम डिस्प्यूटेड टैक्सेस बोलते हैं, वो भी कारो में 2020 में आएगा। जो भी एडिशनल मैटर्स ऑडिटर को लगता है वो सब रिपोर्टिंग कारो पे करना है, ठीक है, सब कारो पे करना है। और जो ऑडिटर अपनी ओपिनियन जो फॉर्म करता है, उसके लिए कौन सा ऐसे है? उसके लिए ऐसे है 700, ठीक है, उसके लिए एक ऐसे है 700, फॉर्मिंग एन ओपिनियन। ओपिनियन कैसे फॉर्म करना है? अब ऑडिटर ओपिनियन किसे फॉर्म करेगा? पहले ऑडिटर एविडेंस लाएगा, ओपिनियन फॉर्म करेगा, फिर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, फिर अपनी रिपोर्ट बनाएगा। वो सब रिपोर्टिंग जो होता है कारो के बेस पे होता है, समझ में? वो सब जो होता है वो कारो के बेस पे होता है। यही एक साइकिल है जो ऑडिटर को मेंटेन करना होता है, ठीक है। और ऑडिटर को हमेशा, मैं आपको एक बात याद करना, ऑडिटर को हमेशा क्या मेंटेन करना होता है? यहां पे लिख देता हूं, ऑडिटर कौन है? प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म। ये एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। ये हर प्रोफेशन, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म मतलब हर बार क्वेश्चनिंग करना। सही है, गलत है, क्यों, वाई, हाउ? प्रोफेशनल स्पेक्ट, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमें सबसे क्वेश्चन करना पड़ता है, ठीक है, हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। तो ऑडिटर को प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म ही होना है, ठीक है ना। ये कब किस पे बोला है? 200 ने बोला है कि आप अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म के, अब अगर मैं प्रोफेशनली अच्छा होऊंगा तो ही तो मैं ओपिनियन फॉर्म करूंगा ना। अगर मैं अच्छा होऊंगा, मैं अच्छा ऑडिटर हूं, तो ही तो मैं ओपिनियन फॉर्म करूंगा। तो इसीलिए आपको प्रोफेशनल स्पेक्टिज्म बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लिखो टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मेरे को बोल सकते हो, समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। टाइप्स ऑफ ऑडिट, अच्छा क्या क्या हो सकता है टाइप्स ऑफ ऑडिट? कल मैंने समझाया था, जैसे कि कंपनी ऑडिट, कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी ऑडिट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट, एक मैनेजमेंट का होता है। इंटरनल ऑडिट, ठीक है। पार्टनरशिप अगर करेगा तो पार्टनरशिप ऑडिट,
गवर्नमेंट करवा रही तो गवर्नमेंट ऑडिट, हर टाइप्स का ऑडिट मैं आपको सिखा रहा हूँ कौन सा टाइप्स है। तो सबसे पहले आप लिखो टाइप्स ऑफ ऑडिट में देयर आर, प्लीज लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, स्टार मार्क लगा लो आप इस पे, स्टार मार्क लगा लो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स में, स्टार मार्क लगा लो। देयर आर different types of audit there are different types of audit which are classified as follows. ठीक है, क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला लिखो आप नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वाइज, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वाइज। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है, इसमें दो आएंगे, इसमें दो पार्ट्स होंगे। पहला नंबर में लिखो आप, नंबर इसमें लिखो पहले ए नंबर में स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है, ये जो वर्ड स्टैट्यूटरी होता है ना, ये जो वर्ड स्टैट्यूटरी होता है ना, इसका मतलब क्या है? कंपलसरी, जरूरी। अगर मैं हिंदी में लिखूं, मेरी हिंदी बहुत कमजोर है, जरूरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जरूरी, करना ही करना है। अब किसने बोला? लॉ ने बोला है। द ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय लॉ, वो क्या होती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। प्लीज लिखो आप, द ऑडिट विच इज कंडक्टेड by following the compliances of law is known as statutory audit. By following the conducted by following the compliances of law, compliances of law is known as statutory audit. For example, on the basis of Companies Act, on the basis of Companies Act 2013, ये आपने लॉ में पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013, ये आप लॉ में पढ़ोगे, ये आप कंपनीज एक्ट जो है ना लॉ में पढ़ोगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट, कॉमा, और बाय सीएजी, ये गवर्नमेंट का है सीएजी, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, और बाय सीएजी। इसमें लिखो कंपोट्रोलर, इसको बोला जाता है क्या? कंपोट्रोलर, COMP TOROLLER, कंपोट्रोलर ऑडिटर जनरल, COMPTOROLLER, कंपोट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है सबसे ऊंचा। ये जो ऑडिट डिपार्टमेंट जो ऑडिट होता है ना, सबसे ऊंचा सीएजी है, गवर्नमेंट का है सीए। इसका इतना पावर है कि ये अलग से ऑडिट करवा सकते हैं। ठीक है, इसकी इतना पावर है कि ये अलग से ऑडिट करवा, जो ऑडिट ऑलरेडी हो चुका वो फिर से बोल सकता है भाई एक बार ऑडिट फिर करो। तो इसके अलग सीए टीम्स होती है, इसका अलग सीए कॉस्ट अकाउंटेंट होता है जो ऑडिट करता है, ये गवर्नमेंट की है। ठीक है, कॉमा, बाय बैंकिंग, बाय बैंकिंग, बाय बैंकिंग, कॉमा, इंश्योरेंस कंपनीज एसेट्रा।
अच्छा, बैंकिंग कंपनी का कौन सा है, कौन गाइडलाइन लेके आएगा बैंकिंग वाला? आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, ये बैंकिंग के बारे में। ओके, वेरियस जो अथॉरिटीज है, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वेल हो सकता है, गेल हो सकता है, जो भी है वो लोग बोल सकता है कि आपको ऑडिट कैसे करना है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वे। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब यही है, जो आपको रूल्स फॉलो करना है वो क्या बनेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट करना ही करना है, जरूरी। स्टैट्यूटरी का मतलब जरूरी, ठीक है। उसके बाद में लिखो नंबर बी, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। अच्छा, ये जो आपका इसमें जो एडवांटेजेस दिया हुआ है ना, प्लीज इसका जो एडवांटेजेस है ना, आप बुक से एक बार गो थ्रू कर लेना, एक रीडिंग कर लेना, आपको बस बेसिक्स पता होना चाहिए। इसका जो एडवांटेजेस है, अब नॉन, अगर आप जैसे कि आप स्टैट्यूटरी ऑडिट का एडवांटेज क्या हो सकता है कि ये जरूरी है, हमें करना है, प्लस रेगुलेटरी मेंटेन हो सकता है। अगर आप ऑडिट कर रहे हो टाइमली, तो रेगुलेटरी मेंटेन हो सकता है ना टाइमली, हाँ भाई सब सही तरीका से मैंने रिपोर्ट किया है, सब तरीका से मैंने कंप्लायंस को फॉलो किया, एडवांटेजेस होते हैं। तो आप एडवांटेज जस्ट एक रीड कर लेना बुक से, एक दो मैं समझा दूंगा आपको, आप जस्ट एक बार रीड कर लेना बुक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक दो एडवांटेजेस आप साथ में लिखेगा ना, तो स्कोरिंग करने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अभी बात आती है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, जो रूल्स फॉलो नहीं करता, लिखो। when audit is conducted, when audit is conducted without any legal requirement, ठीक है, without any legal and requirements, full stop. It is also called, MCQ में आ सकता है, it is also called प्राइवेट ऑडिट, अंडरलाइन कर लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट ऑडिट। फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल्स, एनपीओ, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनपीओ होता है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा, individual firms and proprietorship business, etc. individual firms and proprietorship business, etc. ओके, ठीक है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब समझ में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिखो आप, नंबर 2 जो होगा, पहले कौन से बेसिस पे था, स्ट्रक्चर वाइज। स्ट्रक्चर वाइज में दो है, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, और उसके बाद में क्या आती है, ऑब्जेक्टिव वाइज। नेक्स्ट पार्ट लिखो आप, ऑब्जेक्टिव वाइज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाइज। इसमें लिखो नंबर 1, इंटरनल ऑडिट। इसमें आप लिखो इंटरनल ऑडिट मीन्स, इंटरनल ऑडिट मीन्स an independent management, an independent management which involves critical examination of the functioning of entity, of the functioning of an entity with a view to suggest some improvements and value addition for the governance mechanism, ठीक है।
इसमें कुछ मैंने वर्ड्स बताए आपको, वैल्यू, प्लीज अंडरलाइन करो, वैल्यू, इंप्रूवमेंट्स, ठीक है, इंप्रूवमेंट्स, और कौन से वर्ड्स हैं जो न्यू वर्ड्स है इसमें, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। इधर देखो आप, इंटरनल ऑडिट क्या मतलब क्या होता है, जो आप मैनेजमेंट के लिए करते हो, ठीक है, जो आप मैनेजमेंट के लिए करते हो। तो आप जब मैनेजमेंट की ऑडिट करोगे तो आप मैनेजमेंट को ये कहोगे भाई गलती क्या है, हट जाओ, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आप ये बोलोगे ठीक है, आप जिस सिस्टम से काम कर रहे हो आप उस पर और अच्छे से काम कर सकते हो। यू कैन गिव योर आइडियाज कि आपको कैसे मीटिंग करना है, कैसे आपको प्रॉक्सीज लिखना है, कैसे आपको डिसीजन लेना है, आप उसको बता सकते हो कि भाई हाँ आपने जो काम किया है उसको आप और आगे ले जा सकते हो, आप मेरे हिसाब से ऐसा करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, आप अपने आइडियाज बता सकते हो। उसको बोला जाता है इंटरनल ऑडिट, मतलब इंप्रूवमेंट्स करना। अगर गलती होता है तो ठीक है, आप उसको सही करो और अच्छे तरीके से आप और इम्प्रूव कर सकते हो। एक होता है ना, क्लास में एक बच्चा है जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसका, वो 50-60 के बीच पे रहता है, तो अगर उसको परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो टीचर क्या कहती है, भाई आप और पढ़ाई करो, आप और टेक्निक्स लगाओ और मेहनत करो, तो उसको बोला जाता है इंटरनल ऑडिट। जो मैनेजमेंट के लिए होता है, मैनेजमेंट को ये बोला जाता है कि ठीक है आप सही करो और इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स है वहाँ पे इंटरनल ऑडिट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखो आप, नंबर बी, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट समझ में आ रहा है ना आपको, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लिख सकते हो द ऑडिट, द ऑडिट, द ऑडिट which is conducted, which is conducted by an auditor on the request of a client, by an auditor on the request of a client, to comment on the, to comment on the truthfulness and fairness of financial statements, truthfulness and fairness of the financial statements। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट में, कि क्लाइंट बोलता है ऑडिटर को कि प्लीज आप मेरा ऑडिट करो, ठीक है, उसके रिक्वेस्ट पे जो ऑडिट होगी उसको क्या बोला जाएगा, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट। एक जनरल ऑडिट होती है, एक स्पेशल ऑडिट है, ये स्पेशल ऑडिट है कि आप जो क्लाइंट है वो ये बोल रहे हैं कि आप मेरा ऑडिट करो, उसके रिक्वेस्ट पे ऑडिट जो होगा, और जो ऑडिटर ऑडिट करने के बाद जो ओपिनियन फॉर्म करेगा कि क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर है, क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं, वो ऑडिटर बताएगा, ठीक है। वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे होती है, वो स्पेशल रिक्वेस्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, ओके। अच्छा उसके बाद में लिखो थर्ड नंबर पे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, नंबर सी होगा मेरे हिसाब से, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अब पीरियड का मतलब क्या है बच्चों, पीरियड का मतलब क्या है, पीरियड का मतलब है टाइम, ठीक है, पीरियड का मतलब क्या है, टाइम। या तो आप ईयरली करवाते हो, या आप क्वार्टरली करवाते हो, ठीक है, या आप मंथली करवाते हो, ठीक है, या आप हाफ ईयरली पे करवाते हो, ये क्यों कौन सा है, ये पीरियड। अच्छा इसमें क्या आएगा, सबसे पहले लिखो पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट, पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट, नंबर ए लिखो आप, पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट। ठीक है, इस पे लिखो आप, इस पे लिखो आप, इट इज कंडक्टेड व्हेन, इट इज कंडक्टेड व्हेन it is conducted when books of accounts are closed at the end of the year, books and accounts are closed at the end of the year।
ठीक है, जो ईयर एंड में ऑडिट होता है उसको क्या बोला जाता है? फाइनल ऑडिट। ठीक है, इसका एक एडवांटेजेस लिख सकते हो आप, नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट हेडिंग में लिख सकते हो एडवांटेजेस इसका। नंबर वन, नंबर ए, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव। नंबर बी, प्लांट अप्रोच, क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल रिकॉर्ड का ऑडिट होगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। प्रॉपर प्लांट भी होगा, प्रॉपर प्लांट लिखो, प्रॉपर प्लांट। एंड नंबर सी, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। उसके बाद लिखो नंबर बी। उसके बाद लिखो नंबर बी, इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट, INTERIM, इंटरिम ऑडिट। अच्छा, ये वर्ड जो इंटरिम है, ये क्या होता है? कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। अब मान लो ईयर एंड खत्म नहीं हुआ, तो मैंने बोला, मैं आप क्लाइंट ने बोला ऑडिटर को, एक काम कर, अभी प्रेजेंट पीरियड का मेरा ऑडिट कर दे। ईयर खत्म हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट पीरियड का, अभी ईयर एंड खत्म होने मान लो 9 महीने बाकी है, 3 महीने का काम हो रहा है, तो आप प्रेजेंट ऑडिट कर दो। जो प्रेजेंट पीरियड के लिए जो ऑडिट होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? इंटरिम ऑडिट। ठीक है, जो प्रेजेंट पीरियड के लिए होता है उसको क्या बोला जाता है? इंटरिम ऑडिट। इसमें आप लिखो विच इज कंडक्टेड between the two annual audits, between the two annual audits, for any specific period, for any specific period, for any specific period, or for any quarter, for any specific period or for any quarter, full stop. For example, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, तब जाके मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? एग्जाम में आपको आंसर्स ऐसे ही लिखना है। एग्जाम में 3 घंटा में पूरा दिमाग का आपको बस कंट्रोल ही रखना है, कैसे क्या रखना है। समझ में आया? अब जब फाइनल्स पे जाएगा आप लोग, जब आप फाइनल्स पे जाओगे, फाइनल्स में तो आपको एक प्रेशर रहेगा, भाई फटाफट 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 क्या करना है। तो अभी से उस स्ट्रेटेजी से पढ़ाई करो जो आप फाइनल पे कर रहे हो। ऐसे समझो कि मैं फाइनल का बच्चा हूँ। ठीक है, ऐसे बच्चों, आप फाइनल के बच्चे हो, उस हिसाब से मोटिवेशन के साथ पढ़ाई किया करो, फिर देखो आपको ऑडिट कितना ईजी लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ऑडिट। मैं ये नहीं बोल रहा, बाकी सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऑडिट बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे हर चीज़ नई नई सीखने को मिलती है, हर चीज़। समझ में आया? हर चीज़। तो आपने क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स फॉर एनी सर्टेन डेट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स फॉर एनी सर्टेन डेट। ठीक है, उसके बाद लिखो नंबर सी। नंबर सी लिखो कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट। इसमें लिखो आप, इट इज ए मैथड टू परफॉर्म, it is a method to perform control and risk assessments
control and risk assessments on frequent basis. Full stop. Examination and verification of financial transactions is called a continuous audit. ठीक है? अच्छा, Sir. next. Yes. Hello. Yes. Examination and verification है. एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो ना, हेलो, Yes, sir. नहीं सर, कुछ मतलब एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ उसके बाद ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, Okay, thank you, sir. ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट पैरा पे आप लिख सकते हो, नेक्स्ट पैरा पे लिखो, इट इज नेसेसरी नंबर ए, where there is inadequate, where it is necessary, number A, where there is inadequate internal control. ये इंटरनल कंट्रोल एक चैप्टर आएगा आपको, तो मैं समझाऊंगा इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है. where there is inadequate internal control. Number B, bulky transactions, and number C, Sir, can you repeat the second point? bulky transactions, bulky, BULKY, बल्कि मतलब लार्ज, बल्कि का मतलब होता है लार्ज, ज्यादा. और लास्ट पे आप लिख सकते हो फोकसेस ऑन 100% ट्रांजेक्शंस, फोकसेस ऑन 100% ट्रांजेक्शंस, ठीक है. समझ में आया? जो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट कंटिन्यूअस पीरियड के लिए होगा. कब होगा? जब इंटरनल कंट्रोल इनएडिक्वेट है, ठीक है, जब हमारे इंटरनल कंट्रोल की कमी है, आपके पास में बल्कि ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, और जब आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 100% क्या है, रिलायबल है, मतलब आपके पास फुल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, तब आप कंटिन्यूअस ऑडिट करवा सकते हो. अच्छा, कंटिन्यूअस ऑडिट का कोई टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है, कोई वो नहीं है कि आज ही करना है, ये सरप्राइजिंगली भी हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है. जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो घर पे, ठीक है, सरप्राइजिंगली पापा आ गए, आपको पता नहीं पापा आ गए, मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या कर रही है, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है. जब मैं पढ़ रहा होता हूँ या मैं कुछ तैयारी कर रहा होता हूँ, या तो मेरा बेटा आ जाएगा रैंडमली, या फिर मेरे पापा आ जाएंगे रैंडमली, वो कंटिन्यूअस ऑडिट है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस ऑडिट होता है, राइट. अच्छा, उसके बाद में है नंबर डी लिखो आप, नंबर डी, लिमिटेड रिव्यू. अच्छा, लिमिटेड रिव्यू में क्या होता है बेटा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है ना? फिर नींद आ रही है. लिमिटेड रिव्यू में लिखो आप, एक कंपनी, हाँ, नहीं, ये अलग है. नंबर डी, लिमिटेड रिव्यू, ये अलग है, ये अलग क्लासिफिकेशन है. नंबर डी, ये अलग क्लासिफिकेशन है. नहीं, ये अलग है. नंबर डी आप अलग से लिखो. ये हो गया ना, अभी जैसे कि ये था ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड, सी के बाद डी है यहाँ पे, हाँ, उस पर लिखो आप लिमिटेड रिव्यू. इस पे आप लिखो इट इज एन disclosure requirements, it is an disclosure requirements
It is an disclosure requirements which an company should follow to report to stock exchanges by submitting a quarterly or half yearly report reports for some time. देखो मैं आपको बताता हूँ लिमिटेड रिव्यू का मतलब क्या होता है. मैंने कल एक बात बताई थी आपको, डिस्क्लोजर. अब जैसे कि कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है या कोई सिक्योरिटीज इशू कर रही है, कोई डिवेंचर्स इशू कर रही है, तो उसको भी क्या करना है, उसको भी सेबी को रिपोर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकते. प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकती. अगर वो इसको इशू करना है तो उसको कुछ मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. पब्लिक कंपनीज 100% शेयर इशू कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है. अगर प्राइवेट कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा तो प्राइवेट कंपनी वाला अपने हिसाब से फेस वैल्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा फेस वैल्यू पे शेयर इशू चार्ज करेगा पब्लिक से. क्योंकि शेयर इशू करना मतलब क्या है, कैपिटल इशू करना है. क्योंकि कंपनी को पैसे का जरूरत है. हम लोग शेयर इशू कब करता है, जब कंपनी को पैसे का दरकार है और पब्लिक उसको पैसा देती है और कंपनी उसके बदले उसको क्या देती है, शेयर देती है. तो ये तो सोर्स ऑफ कैपिटल फाइनेंस है ना. तो उसके बारे में भी सेबी को रिपोर्ट करना है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करना है कि आपके पास में क्या है, कितना पीरियड का आपके पास में शेयर्स है, कितना आपके पास में रिजर्व्स है, कितना आपके पास में प्रॉफिट्स है. वो हर चीज जो आपको रिपोर्ट करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. ये आया था 2015 में. ठीक है, ये आया था 2015 में. ये आया था 2015 में एलओडीआर. ठीक है. ये सिक्योरिटीज वालों के लिए है कि आपको जो रिपोर्ट बनानी है सेबी को रिपोर्ट करना ही करना है. अगर नहीं करोगे तो पे फॉर द पेनल्टीज. बहुत ज़्यादा पेनल्टीज है. मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ. अगर कोई भी स्टॉक ब्रोकर होता है ना, हम लोग ब्रोकर के थ्रू शेयर वगैरह खरीदते हैं ना, तो वो हम लोग से कमीशन वगैरह लेता है. अगर कोई भी स्टॉक ब्रोकर एक्सेसिव प्रॉफिट यानी एक्सेसिव प्राइस चार्ज करता है हमसे, मान लो उसका दाम 10 रुपये है, वो हमसे 50 रुपया चार्ज करता है, तो उसको पता है कितने का पेनल्टी है सेबी ने लगा रखा है. उसके ऊपर सेबी ने 1 करोड़ विद 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस प्राइस. 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस प्राइस. अगर कोई भी स्टॉक ब्रोकर किसी शेयर होल्डर से ज्यादा पैसा चार्ज करता है तो उसको 1 करोड़ विथ 5 टाइम्स एक्सेस प्रॉफिट. अब हम लोग 1000 करोड़ का शेयर हो गया तो 5 टाइम्स 5000 करोड़, ये सेबी ने पेनल्टी लगा रखी है. तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेड, ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है ये क्या है, लिमिटेड रिव्यू है. लिमिटेड रिव्यू का मतलब होता है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी को रिपोर्ट करना है. किसको, स्टॉक एक्सचेंज को. ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना है. आप ब्रैकेट पे लिख लो ना सेबी, ब्रैकेट पे लिख लो सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी एसेट्रा, ये जो है इनको रिपोर्ट करना है. ठीक है, तो ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप लिखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है, मेरे हिसाब से कौन सा नंबर आएगा ये, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन 5. ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप वाइज, स्कोप के बेसिस पे ऑडिट का कैसा क्लासिफिकेशन होता है वो हमें देखना है. ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप वाइज. उसमें लिखो आप नंबर एक तो है कंप्लीट ऑडिट, इसमें आप लिख सकते हो दिस मीन्स, कंप्लीट ऑडिट पे आप लिख सकते हो दिस मीन्स where scope is not confined for specific limits.
लिमिट्स. ये लीव कॉल करना होगा ना. इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है. हाँ, कौन सा? ये ओके ओके.